This video tutorial is related with the exploratory analysis under the statistical foundation of the artificial intelligence and the data sciences. In the previous part we was discussing about the descriptive data analysis. So the previous video link available into the comment box and you will check it out the previous part, and after that you will shift into the exploratory analysis. In the description part the whole link available of the data analysis, so you all will see properly the previous part, and after that you will enter into the exploratory data analysis. So exploratory data analysis is the very important approach for the every data sciences field, where we use the different fields applications available into the artificial intelligence. So the exploratory data analysis approach to analyze the data using the visual technologies, and it is used to discover trends, patterns, and to check the assumptions within the help of statistical summary that is recorded from the previous analysis, that is the descriptive analysis and the graphical representation. So what we do into the descriptive data analysis, what we checked, that is the raw material assumption process, knowledge, information fetching from the descriptive analysis, that is the recorded data from the previous analysis, is the statistical summary of that particular part. And in this part, exploratory data analysis, read all the values from the descriptive part, previous part analysis, and the pattern recognition and all assumptions, check it out into the summary part and the graphical representation with the different part of the histogram, like histogram, frequency polygon, and the frequency curve. That particular video is also available into the description box. You will check it out that video, that what is the histogram and how to deal with the histogram values with the raw data and the exploratory data analysis with the graphical representation. Because graphical representation, by the psychology said that the human taking the graphical representation very well as the characters, means कि जब किसी ह्यूमन को हम कोई करेक्टर्स रिकॉग्निशन की पार्ट की वैल्यूज दिखाते हैं तो वो उतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ग्रैप नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद भी ये कहती है कि only not in the computer science and the engineering field will be used in future artificial intelligence. That is approach of the data sciences available with the different part and the different criteria that we will use into this, that particular with the business, trends, mathematics, and the history part, organizations, and another part we will having like psychology and the materialistic things into the business, what will profit, what will loss, and as this. So the graphical representation for the profit criteria, that जब आपने ईयर में कितना प्रॉफिट किया, कितना सोचा था, जो हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस पार्ट, वही ये आगे इम्पॉर्टेंट पार्ट करेगा कि उसको एक विजुअलाइज टेक्नोलॉजीज में डाल के किसी के सामने प्रेजेंट करना है किसी मशीन को कि ये सॉफ्टवेयर ये काम कर सकता है. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट अंडर द पार्ट ऑफ EDA, मीन्स की एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. इट एक्चुअली हेल्प करता है ये हमारे जो लुक एट डेटा बिफोर मेकिंग द अजम्पशंस, जो हमने अजम्पशंस की होती हैं उससे पहले जो डेटा लिया होता है उसको एक वेल अंडरस्टैंडेबल मैनर में लाने के लिए, और उससे सारी एरर्स रिमूव करके आइडेंटिफाई करके हमें जो डेटा प्रोवाइड करता है वो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. सो रिलेशन अमंग वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, मीन्स कि उनमें जो वेरिएबल्स में रिलेशंस किस तरह के हैं, 1 to 1, 1 to many, and many to 1, or whatever the part is, it is in the business, psychology, history, mathematics, biology, zoology, statics, whatever it is. so उनमें रिलेशंस ढूंढने, फाइंड आउटलायर्स मीन्स कि जो आपने एक स्टैट्स बना ली है इन द मीन मीडियन मोड से जो बनाई थी, अब रिलेशन ढूंढने हैं तो डेफिनेटली हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है. तो अगर दो रिलेशंस में ही आपको जो है दो वेरिएबल्स में अगर आपको रिलेशन ढूंढना है तो यहाँ पे हमें नीड बढ़ जाती है कोरिलेशन की, क्योंकि कोरिलेशन एक स्टैट्स का ऐसा पार्ट है जो कि रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स के साथ डील करता है. एंड व्हेन वी विल एंटर इनटू द रिग्रेशन, तो डेटा साइंस जो है वो रिग्रेशन के साथ डील इसलिए करती है क्योंकि जब भी दो वेरिएबल्स की बात आती है तो कोरिलेशन खुद ही कहता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आप जनरली लेते हो किसी पार्ट के ऊपर, मीन्स कि आपकी वैल्यूज़ ग्राफिकली प्लॉट हो या आप
साइंसेस में प्लॉट कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स में प्लॉट कर रहे हो, साइकोलॉजी में कोई एंट्री दे रहे हो, तो वेरिएबल्स में अगर आप रिलेशन ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली with the help of correlation you will enter into that part and after that regressions at that कि जब आप उस पार्ट का कोई एनालिसिस करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कोई बाहर से भी वेरिएबल उसमें डील करवाना चाहते हो जो कि फ्रीक्वेंसी की हेल्प से भी आया है या कोई आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी छोड़ दी थी तो उससे आया है, तो आप आउटलायर जो होते हैं वो रिग्रेशन से निकाल सकते हो। एक स्पेशल नोट है डेटा साइंसेस का कि डेटा साइंटिस्ट कैन यूज ऑल्सो द ADA because that is not only used for the stat purposes or the mathematical purposes, not for the correlation or regression, that is usage for the ensure the result that they produce that they are valid and without any errors and application to the desired business outcomes and to achieve the desired goals जो आपने सोच रखे हैं उसके ऊपर ये वर्क करता है डेटा साइंस। आगे इसकी टाइप जिसमें हम बात करते हैं कि ये यूनिवेरिएट नॉन ग्राफिकल, मल्टीवेरिएट नॉन ग्राफिकल, यूनिवेरिएट ग्राफिकल एंड मल्टीवेरिएट ग्राफिकल के साथ भी चलता है। यूनिवेरिएट मीन्स कि अगर डिफरेंट तरह के कोई पार्ट है जो हमारे वेरिएबल के पार्ट डिफरेंट कंसाइज वेरिएबल से आए हुए हैं, जो आउटलायर से आए हैं, ये उनके साथ भी डील करेगा जब इसके न्यूमेरिकल के साथ डील करेगा। मल्टीवेरिएट में ये आपकी वैल्यू अगर बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी में डील करती है तो उसके साथ भी ये ईडीए डील करती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्टिव का पार्ट उठा रही है। अनवेरिएट ग्राफिकल या मल्टीवेरिएट ग्राफिकल जो कि डायरेक्ट रिग्रेशन और कोरिलेशन कहता है कि यूनिवेरिएट है तो कोरिलेशन है, मल्टीवेरिएट है तब भी कोरिलेशन है, बट एनालिसिस अगर करना है तो व्हेन यू विल एंटर इनटू द रिग्रेशन पार्ट। स्टेप्स होते हैं जो हमारे डाटा कलेक्शन के अंडर ईडीए। सबसे पहले क्या करना होता है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको चेक करिए, एनालिसिस कीजिए कि उसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और हमें कौन सा डेटा सेट उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई एरर है उस डेटा सेट में तो एरर रिमूव कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि सिमिलर वेरिएबल्स कौन से हैं और अनसिमिलर कौन से हैं, ताकि डिफरेंशिएबल में अनवेरिएट और मल्टीवेरिएट अलग अलग किए जाए। उसके बाद एक राइट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ कीजिए कि कौन सा ऐसा मेथड इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हम एक राइट पाथ के ऊपर पहुंच सकते हैं और उसके बाद विजुअलाइजेशन और एनालाइजिंग रिजल्ट्स आएंगे। और एक्चुअली में जो ये डेटा साइंटिस्ट का पार्ट होता है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करता है, स्पेशली विद द फर्स्ट लैंग्वेज। पाइथन भी यूज़ करती है इसको, जिसमें इन्वेस्टिगेट करती है डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नल वैल्यूज़। अगर कोई नल वैल्यूज़ छूट गई हैं आपसे डेटा कलेक्शन में तो पाइथन भी यूज़ करेगी, आर प्रोग्रामिंग भी यूज़ करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की और पार्ट भी यूज़ करेंगे। इवन पाइथन इज़ द वेरी पॉपुलर लैंग्वेज ऑन दीज डेज, जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा इनपुट सिंटैक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता, इसलिए पाइथन को इंक्लूड करवाया गया डेटा साइंटिस्ट के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नल वैल्यूज़ अगर कहीं किसी बिजनेस वाले से, किसी मैथमेटिक्स वाले से छूट जाती हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर पाएँ। सो द regression and correlation is the part of the EDA and that was discussed in the previous part in the descriptive data analysis related with the measure of center tendency, all part, dispersion and the kurtosis, standard deviation, mean deviation, all part related with the data analysis. Hope so the all information related with the data analysis covered very carefully and you like all the information. And if you have any type of query or question, kindly comment into the comment box, and if you feel that the particular channel videos are really helpful, kindly share with your friends for the information in the data sciences and the artificial intelligence field. So the next part of the artificial intelligence definitely uploaded very earlier in this channel, so keep in touch with the channel. Thank you so much.